Good morning, students. I am Akhlaq Ahmad. Welcome to the chemistry class. Today, I am going to discuss about chemistry. Do you know, my dear students, how many total chapters are already available in 10th standard? I mean in chemistry? 5th chapter, okay. So, today I am already going to discuss on the periodic classification of elements. Why we should start from periodic classification of elements, do you know? Yes, I mean elements is the root of chemistry. So if you want to improve your knowledge in chemistry subject, so this is my personal opinion, personal view, you should start from this chapter. So I'm already going to make this video for you, my dear students. There are 4 parts in this chapter. In first part, I mean in first video, we will study sources of elements, distribution, contribution or importance of elements, definition of an element, some important elements name from the long form of periodic table, and their atomic numbers and atomic masses. 11 wonders elements related to Latin names. In second video, we will study electronic configuration of element, potential energy diagram or Aufbau principle. We will study also in this video, I mean in second video, valence electron, valency, detailed information about groups and subgroups, periods and characters. In third video, I mean in third part, we will study making rule of long form periodic table, I mean modern periodic table, Henry-Moseley periodic table, magical moment of that periodic table, magic number of that periodic table, and how will we fill up A to Z elements on the periodic table according to their properties, we will see. And after that we will watch some miscellaneous and factual knowledge related to these elements. In fourth video, in fourth part, we will study, my dear students, revision of first, second and third videos. I mean, first of all we will do revision, first video, second video and third video, and after that we will study about blocks. I mean blocks are divided into, blocks is divided into 4 parts: S block, P block, D block and F block. We will discuss about them, and we will also discuss about their properties. In last video, I mean in fourth video, we will also study nature of oxide, size of atom, chemical reactivity, ionization potential, electron negativity, electron affinity, and periodicity
typical elements, diagonal relationship, family, I mean alkaline alkali metal, alkaline earth metal, transition metal, boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, fluorine, I mean hydrogen family, inert gas, noble gas, zero inactive family, inert transition family. And we will also discuss in this part some earlier periodic table, some earlier laws. As for example, you can take Dobrynin triads, Newland's law of octaves, Mendeleev's periodic table, and in last we will study facts to know. Facts to know is also very compulsory for you, and if you will study these videos, I assure you, my dear students, you will feel about yourself, I am able to answer any type of questions related to these elements. I mean, you will appear in any competitive exams, you will answer any type of question related to elements frequently, and you will feel better. So first of all, I will write 5 chapters name on that whiteboard and you will watch, and after that I will suggest you, my dear students, one of them, the periodic classification of element is compulsory for you, and you should start from that chapter. So these 5 chapters names are, I am already going to write here. Please look at this whiteboard. First of all, 5 chapters. I am just going to write here. Chapter's name: chemical reactions and equation. Chemical reaction and equation. Second chapter name is acids, bases and salts. Third chapter name metals and non-metals. Fourth chapter name is carbon and its compound. Fifth chapter name is periodic classification of elements. So dear students, please look at this whiteboard. These 5 chapters are already available in your 10th standard. Chemical, first chapter name is chemical reaction and equation. Second chapter is acids, bases and salts. Third chapter name is metals and non-metals. Fourth chapter name is carbon and its compounds. And fifth chapter is periodic classification of elements. So only 5 chapters are already present in your subjects, in chemistry subjects. And we have to discuss about that chapters one by one. First of all, I want to
give you very good tips. According to this technique, methodology, if you will study, then you will get easily about it. Now watch here what I am saying you. Chapter number 5 and chapter number 3 are related to elements. And chapter number 2 and 4 are related to compounds. So 3 and 5 both chapters are already related to elements, and 2 and 4 both chapters are related to compounds. And do you know, first of all we should study about elements. So according to these chapters content, if you will study, you will not get easily. So please try to understand, my dear students. If you don't know, suppose if you don't know anything about chemistry, so you should start first of all from elements. Then you should study about compounds. So let us start from periodic classification of elements. If you will study these chapters, so I promise you, you will get chemistry from grassroots level. Why? Elements is the already roots of chemistry. तो पहले हम लोगों को रूट समझना जरूरी है, इसलिए हम लोग मैट्रिक्स में दिए हुए चैप्टर्स के कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ करके हम लोग इसमें सबसे बेसिक चीज को पहले उठाएंगे कि पहले वो पढ़ लें अच्छे से, तब बढ़िया से हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ लें, तब जाकर के हम एसिड्स और बेस और सॉल्ट पढ़ लें, फिर हम जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ें, तो फिर रिएक्शन बनाने आपको आएगा, बैलेंस करने आएगा रिएक्शन को, बहुत बढ़िया से आप उसको समझ सकते हैं। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको ग्रास रूट लेवल से समझाना स्टार्ट करूंगा। आप पूछेंगे कि ये कंटेंट्स में राइटर जो लिखे हैं वो उल्टा लिख दिए हैं, तो ऐसी बात नहीं है, राइटर ये समझ रहे हैं, राइटर इज ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट यू, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स इन योर प्रीवियस क्लासेस। मैं समझ रहा हूं कि स्टूडेंट्स को जब पढ़ाने जा रहा हूं मैं, तो क्यों ना उसको स्टार्टिंग से पढ़ा दिया जाए कि बेस भी स्ट्रांग हो जाए। राइटर्स और ये समझ रहे हैं कि बच्चे तो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम तो कहीं से कोई चैप्टर उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मैं आपको, आप जानते हो नहीं जानते हो, मेरा जो पढ़ाने का इतना साल से एक्सपीरियंस रहा है, आई मीन आई हैव बीन ऑलरेडी टीचिंग chemistry for several years ago, so my experience ये कहता है, मैं according to, मैं पर्सनल अपना व्यू बता रहा हूँ कि मेरा ये पर्सनल मानना है कि हम लोगों को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से ही स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपको सारी बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग ये चैप्टर फर्स्ट मान करके स्टार्ट करते हैं। So let us start from these chapters. Chapter's name is periodic classification of elements. Periodic classification of elements. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड इन दिस चैप्टर
what will we study? So we will study in this chapter according to these topics. One by one I am already going to write here. You can look at this whiteboard. Dear students, 1 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स का सोर्सेस क्या है, ये कहां से एलिमेंट्स हमको मिल सकता है. आइए देखते हैं. सोर्सेस ऑफ elements. Second, distribution of elements. In third step we have to study. We will learn in this chapter. In third step, importance of elements. Importance of elements. Definition of element. Definition of element. 5. Definition of element. 5 number. Elements name. Some important elements name. Some important elements name. Symbol of elements. Atomic number and atomic mass of elements. You can write here. In 8 point we have to study. I am just going to erase here. These are noteworthy points. You can note sources of elements. एलिमेंट्स को कहां से लाया गया है, एलिमेंट्स कहां मिलेगा, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. नहीं तो होता क्या है कि आप इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मटेरियल्स पढ़ लेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि एलिमेंट्स होता किस में है, किसको कहते हैं, किस कलर का होता है, नहीं पता चलेगा.
तो चलिए पहले हम लोग इसीलिए सोर्सेस पता करें। तो प्रीवियस स्टेज में हम लोगों को जाना पड़ेगा, प्रीवियस क्लास में जाना पड़ेगा सोर्सेस ऑफ एलिमेंट्स के लिए। तो 2 मिनट में हम लोग जा करके और इस टॉपिक पर आते हैं। फिर 2 मिनट में कहां जाएंगे भाई साहब? दुनिया में जो भी मैटर्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, जो भी, मेरे हाथ में मार्कर है, ये मास्क है, ये टेबल है, ये बुक है, ये कॉपी है, लेक्चर बॉक्स है, या जो भी आप देखते हो, वी हैव बीन ऑलरेडी वाचिंग सच टाइप ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ऑल आर कॉल्ड मैटर्स। क्यों कहेंगे? मैटर का क्या डिफिनेशन हुआ भाई? मैटर को कैसे समझेंगे कि मैटर है? मैटर, a substance has occupies some place, put resistance and has some mass, that is also known as matter। जिसमें थोड़ा सा भी वेट हो, जो थोड़ा सा भी जगह लेता हो, वो दुनिया का, अपने आसपास का नजर उठाकर देखें, कोई भी चीज आपका मैटर होगा। मैटर तो ये क्लियर हो गया भाई। एलिमेंट्स कहां से आया? तो जितने भी मैटर्स होते हैं सभी में एलिमेंट्स होता है। वो कैसे? मैटर इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फिजिकल मैटर एंड केमिकल मैटर। फिजिकल मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज आर ऑलरेडी स्टेजेस ऑफ द फिजिकल मैटर्स। तो अभी फिजिकल मैटर्स को हम लोग अभी छोड़ करके चले, केमिकल मैटर्स पर आए। केमिकल मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसको भी अभी छोड़ दें, सिर्फ किसको लेना है? आइए थोड़ा सा समझते हैं 2 मिनट में, फिर हम तुरंत यहां पर आते हैं। मैटर को हमने डिवाइड किया कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, फिजिकल मैटर एंड केमिकल मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज बोले या मैटर बोले, ठीक। फिजिकल मैटर और केमिकल मैटर्स हो गया। इस फिजिकल मैटर में हमने जो है प्रीवियस क्लास में, 9th क्लास में, मैटर अराउंड अस में डिस्कस किया हुआ है। इसका डिटेल अगर आपको मटेरियल्स देखना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर ए अहमद खान का आपको वीडियो मैटर अराउंड अस आपको मिल जाएगा। डिटेल इसके बारे में समझाया गया है। ये 3 स्टेज में है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप बोलेंगे कि सर एलिमेंट्स में भी तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। बिल्कुल, एलिमेंट्स भी तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड्स भी एलिमेंट्स होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। सॉलिड में कौन होता है भैया? सारा मेटल है, जिसके लास्ट में आपको यूएम ओम लगा हुआ देख रहे हो आप। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आपको स्कैंडियम, आपको टिटेनियम, वाइडेडियम, क्रोमियम, ये जितने भी ओम लगा हुआ वाला आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है, सभी के सभी मेटल है, सभी के सभी सॉलिड है। कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होता है। आप एग्जांपल ले सकते हो Hg, मरकरी, हाइड्रोजीरम एंड गैलियम, ये आपका लिक्विड फॉर्म में है। गैस भी बहुत सारे हैं, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे गैसेस भी होते हैं। तो एलिमेंट्स तीनों फॉर्म में पाया जाता है। ये इसका इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रांग होता है। इसका जो है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वीकर देन आपको सॉलिड होता है। और इसका इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स द वीकेस्ट होता है, सभी से कम होता है। हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली भी इसको हम समझ सकते हैं। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट होगा पूरी तरह से, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर इसका जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और इसका थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा। गैस में बिल्कुल ज्यादा आपको इंट्रामोलिकुलर दिखाई देगा कि बहुत दूरी पर है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं इसमें बहुत कम होता है, इसमें सॉलिड से कम होता है और इसमें सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग जो है इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करें। अभी हम लोग आते हैं केमिकल मैटर्स पर। केमिकल मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ये मिक्सचर भी 2 पार्ट में है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर।
इसको भी अभी अभी छोड़े भैया, प्योर सब्सटेंस के बारे में मुझे एलिमेंट तक पहुंचना है, तो हमको एलिमेंट्स यहीं से मिलता है। प्योर सब्सटेंस इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। किसमें बढ़ता है? एलिमेंट्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। आपको 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर्स पढ़ने के लिए इन्हीं से लेना देना है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड कहां पाया जाता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड, दैट इज वेरी क्लियर, दैट इट इज easy to understand, you can get easily about it what I'm saying। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों किसका पार्ट है? दोनों मैटर का पार्ट है। अब आपको समझ में आ गया इसका सोर्सेस ऑफ एलिमेंट्स, आपको पता चल गया कि किसी भी मैटर की बात करेंगे अराउंड अस, वो सभी मैटर्स में इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी होता है, दैट इज वेरी क्लियर। अब ये एलिमेंट्स और कंपाउंड से रिलेटेड आपके 10th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के बुक में 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं। एलिमेंट्स से रिलेटेड आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, और मेटल नॉन मेटल्स है, और कंपाउंड से रिलेटेड एसिड बेस एंड सॉल्ट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। तो 2 चैप्टर कंपाउंड से रिलेटेड है, 2 चैप्टर आपका एलिमेंट से रिलेटेड है। तो कंपाउंड और एलिमेंट में छोटा कौन होता है? एलिमेंट होता है। इसलिए हम लोग एलिमेंट से ही जानकारी स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चों को भली भांति एलिमेंट्स के बारे में जानकारी हो जाए, और जो कि केमिस्ट्री का रूट है, और वो रूट आपको मजबूती से पकड़ में आ जाएगा, तो आप बड़ी आराम से पूरे वृक्ष पर कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। तो हम लोग चलिए एलिमेंट्स के सोर्सेस के बारे में जाने कि ये एलिमेंट्स आता कहां से है। तो आपको पता चल गया कि दुनिया के सारी चीजें जो मैटर्स होती हैं, मैटर्स में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी होता है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक, सेकंड टॉपिक, सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन ये मान ले आप कि अगर एलिमेंट्स, सिर्फ एलिमेंट्स को हटाकर और दुनिया में किसी भी चीज के बारे में अगर उसके एग्जिस्टेंस के विषय में सोचें, दुनिया में से मान के चलो थोड़ा देर के लिए एलिमेंट्स हम हटाने जा रहे हैं, और एलिमेंट्स हटा करके सोचें कि क्या जानवर, क्या कोई इंसान जिंदा रह सकता है? क्या कोई ऑब्जेक्ट्स अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंगली, या जो भी फोर्स है उसके अकॉर्डिंगली, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली अपने पाथ पर मूव कर सकता है? नो। कोई भी प्लांट्स जिंदा रह सकता है? नो। कोई एनिमल्स जिंदा रह सकता है? नो। कोई ह्यूमन बीइंग जिंदा रह सकता है? नो। ये अर्थ क्रस्ट जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, यह अर्थ क्रस्ट पर जिस पर आप शानदार बिल्डिंग बनाते हो, शानदार गाड़ियां दौड़ाते हो, स्कूल में पढ़ने आते हो, चलते हो, और जाने क्या क्या इस संसार के पृथ्वी पर आप क्या क्या करते हो, तो क्या ये धरती अपने अलाइव रह सकती है? क्या इस पर हम खड़े हो सकते हैं? नहीं। यानी कि बस इतना से आप समझ लो कि अगर एलिमेंट्स को हटाने की बात अगर सोच लिया आपने, हट गया, तो दुनिया से सभी लोग हट जाएंगे। ये है कंट्रीब्यूशन एलिमेंट्स का। तो कहां कितना कंट्रीब्यूशन है, हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देकर के आगे बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन अर्थ क्रस्ट। अगर अर्थ क्रस्ट की बात की हो तो पहले अर्थ क्रस्ट में हम पढ़ते हैं अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट कौन सा एलिमेंट है? सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 49%, ऑक्सीजन 49%। सिलिकॉन 28%, सिलिकॉन
28%, aluminium 7.5%, calcium 4.7%. ये चार एलिमेंट्स मैक्सिमम जो है क्वांटिटी में पाए जाते हैं। आप सोच लो कि अर्थ क्रस्ट से अगर ये चारों एलिमेंट्स हटा लिया जाए तो क्या होने वाला है। ये है अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो कंट्रीब्यूशन आपने देख लिया। चलिए हम लोग देखते हैं अर्थ क्रस्ट, एंड वी आर ऑलरेडी गोइंग टू वॉच इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में एलिमेंट्स का क्या रोल है, उसका इंपॉर्टेंस है कि नहीं, देखते हैं। इन ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन 65%। ऑक्सीजन कितना है ह्यूमन बॉडी में? 65%। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, एंड कैल्शियम 2%। ये बॉडी के अंदर नियर अबाउट 99%। फॉस्फोरस भी ले लो 1%, फॉस्फोरस 1%, 99% नियर अबाउट ये आपके ह्यूमन बॉडी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स मिल करके अपनी क्वांटिटीज बनाए हुए हैं। तो क्या आप सोच सकते हो कि इस एलिमेंट्स को अगर निकाल दिया जाए आपके बॉडी के अंदर से, तो क्या आपका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ये है एलिमेंट्स का रोल, ये है एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन, और हम दिखा रहे हैं अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिमेंट्स। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम इन्वायरमेंट में। चूंकि अर्थ क्रस्ट के ऊपर हैं, मानव हैं और इस इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो अर्थ क्रस्ट का हमने कंट्रीब्यूशन एलिमेंट्स का देख लिया, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। एलिमेंट्स का वाइटल रोल है, एलिमेंट्स के बगैर कुछ सोचा नहीं जा सकता है। ह्यूमन में भी एलिमेंट्स के बगैर कुछ नहीं सोचा जा सकता है। और नेक्स्ट इन्वायरमेंट में जहां हम रहते हैं, क्या उसमें भी एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंट वाइटल रोल है? उसके बगैर क्या हम नहीं रह सकते, या इन्वायरमेंट नहीं रह सकता है, या फिर जो है उसका रोल है तो कितना रोल है? ये तो 100% है। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आप ये जान लें कि विदाउट एलिमेंट्स वी कांट अलाइव। आइए यहां पर देखते हैं हम इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट थोड़ा सा हम लोग फास्ट होंगे बाद में, पहले आपका बेस बन जाए। इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन हाउ 78%। ऑक्सीजन 21%, एंड
नियर अबाउट यही दोनों मिल करके 99% बना देते हैं। कमाल है। ये दो एलिमेंट्स को अगर हम इन्वायरमेंट से निकाल लें तो फिर इन्वायरमेंट आपका नहीं रहेगा और उसमें रहने वाले जितने भी जीव हैं वो भी नहीं रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये जान गए और इससे ही आपका तीसरे टॉपिक का भी आंसर हो गया कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल ऑफ एलिमेंट्स इन आवर सोसाइटी एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स। तो आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए हम फोर्थ टॉपिक पर आते हैं। चौथा टॉपिक क्या है? डिफिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। In fourth step we have to study in fourth, चौथा टॉपिक है definition of elements। definition of elements। definition of elements, इसका डिफिनेशन क्या है? एलिमेंट्स का डिफिनेशन अगर कोई पूछता है तो उसको डिफिनेशन कैसे बताएंगे? तो शॉर्ट में आप डिफिनेशन भी दे सकते हैं और थोड़ा बड़ा करके भी डिफिनेशन बता सकते हैं। ये दोनों डिफिनेशन आपको व्हाइट बोर्ड पर मैं दिख रहा हूं। Which type of definition do you like? You have to select that. You have to note down that definition on your piece of paper and you can memorize. Remember, okay? Watch here. A substance, या फिर एलिमेंट से ही डायरेक्ट लिखो। एलिमेंट is the purest substance which made up of atom। क्लियर हो गया? Element is the purest substance which made up of atom। दूसरा आप लिख सकते हो element is the purest substance and it is form a substance which can neither be divided to or more than two substances nor can be
built from substances from any substances by any physical and chemical methods. Element is the purest substance which is made up of atom, or elements is the purest substance and it is form a substance which can neither be divided two or more than two substances, nor can be built from any substances by any physical and chemical methods. So dear students, you can watch this definition and you can get बहुत सारे एलिमेंट्स. अभी तुम लोगों को एलिमेंट्स हम लोगों ने दिखाया, मैंने दिखाया कि अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन था, अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन था, अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन था, और मैंने दिखाया इन्वायरमेंट और ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और बहुत सारे एलिमेंट्स हमने दिखाया. ये एलिमेंट्स जो है सिंगल होता है, उसको डिवाइड दो या दो से अधिक भाग में नहीं बांटा जा सकता है, या फिर उसको जो है नहीं आपको बांटा जा सकता है, और वो प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है. क्योंकि मैटर में हम लोगों ने पढ़ लिया है, मैटर केमिकल मैटर जो था उसमें हमने पढ़ा था केमिकल मैटर इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्योरेस्ट सब्सटेंस एंड मिक्सचर. तो ये प्योरेस्ट सब्सटेंस है, एलिमेंट भी प्योरेस्ट सब्सटेंस है और कंपाउंड भी प्योरेस्ट सब्सटेंस है. मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है. तो अब हम किसी भी एलिमेंट्स को ले लें, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरॉन हो, कार्बन हो, आपको नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, नियोन हो, किसी भी एलिमेंट्स को ले लें, वो दो या दो से अधिक भाग में नहीं बांटा जा सकता है. दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स. divided into two or more than two parts, two substances. Very good. And now can be built from any substances by any physical or chemical method or chemical methods. Okay, you can note here, note down on a piece of paper. Yes, you have been already watching this material, the definition on that whiteboard, so you can note down this definition on your piece of paper from this board. Okay, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये हमने 4 पढ़ लिया, डिफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. इसके बाद का कौन सा टॉपिक है? चलिए आइए इसको इरेज करता हूं मैं. इसके बाद का टॉपिक बताइए फास्ट में, कौन सा टॉपिक है? इसके बाद वाला टॉपिक बताइए फास्ट में. यस, एलिमेंट्स नेम. चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स नेम. एलिमेंट्स सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स नेम, यह टॉपिक है आपका. सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स नेम हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, और ये 5 नंबर टॉपिक है. 6 नंबर टॉपिक में एटॉमिक नंबर है, और 7 नंबर टॉपिक में एटॉमिक मास है. ये तीनों चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एक साथ. तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं एलिमेंट्स नेम. एलिमेंट्स नेम, यहां सिंबल भी लिखता हूं, सिंबल, और यहां एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास.
जब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो एटॉमिक मास पर वो आधारित था, अरेंज किया गया था। और एटॉमिक मास ये मोस्टली लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर। सिंबल आपको एलिमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म है जो आपको यहां दिखाया जाएगा। चलिए 1 2 करके हम लोग एलिमेंट सब फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिसको याद है रिवाइज कर ले, जिसको नहीं याद है वो फटाफट लिखेगा भी, नोट डाउन भी करेगा। पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मैं फास्ट में लिख रहा हूं क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगाना है। हीलियम, लिथियम, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे पढ़नी है तो इसमें हम लोग टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। इसका हाइड्रोजन का सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। हीलियम He 2 4, लिथियम Li 3 7, बेरिलियम Be 4 9, बोरॉन B 5 10, कार्बन C 6 12, नाइट्रोजन N 7 14, ऑक्सीजन O 8 16, फ्लोरीन F 9 19। हाइड्रोजन H 1 1, हीलियम He 2 4, लिथियम Li 3 7, बेरिलियम Be 4 9, बोरॉन B 5 10, कार्बन C 6 12, नाइट्रोजन N 7 14, ऑक्सीजन O 8 16, फ्लोरीन F 9 19। Have you already written? Okay, so I am going to erase here. Neon, neon, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आर्गन, नियॉन Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar 10 20 11 23
12 24, aluminum 13 27, 14 28, 15 31, 16 32, 17 35.5, आर्गन 18 40 कर लो। चलिए एक बार फिर पढ़िए मेरे साथ, रिपीट विद मी। नियॉन Ne 1020, सोडियम Na 1123, मैग्नीशियम Mg 1224, एल्युमिनियम Al 1327, सिलिकॉन Si 1428, फास्फोरस P 1531, सल्फर A 1632, क्लोरीन Cl 1735.5, आर्गन Ar 1840। इरेज कर दो भाई इसको, जो नहीं लिखे हैं फटाफट लिखिए, समय नहीं है, बहुत पढ़ाना है, फास्ट में लिखिए। पोटेशियम 19, पोटेशियम पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटानियम, टिटानियम, वैनाडियम, क्रोमियम, 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 मैंगनीज, मैंगनीज, आयरन, पोटेशियम के, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टिटेनियम Ti, वैनाडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, आयरन Fe। पोटेशियम 19 39, कैल्शियम 20 40, स्कैंडियम 21 45, टिटेनियम 22 48, वैनेडियम 23 51, क्रोमियम 24 52, मैग्नीज 25 55, आयरन 26 56। So repeat with me again. 19 20 21 22 23 24 25 26। पोटेशियम के 1939, कैल्शियम Ca 2040, स्कैंडियम Sc 2145, टिटेनियम Ti 2248, वैनेडियम V 23S51, क्रोमियम Cr 2452, मैग्नीज Mn 2555, आयरन Fe 2656। देख लिया, इसको फिर फास्ट में लिखिए। ये एक तरह का मैराथन क्लास हो रहा है, फास्ट में मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कोबाल्ट 27, कोबाल्ट कोबाल्ट, निकेल निकेल, जिंक, गैलियम,
जर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, सेलेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Symbol cobalt, nickel, copper, zinc, gallium, germanium, arsenic, selenium, cobalt 27, 59, nickel 28, 59, copper 29, 63, zinc 30, 65, gallium 31, 70, 32, 70, 72, arsenic 33, 75, selenium 34, 78. So repeat again with me. Cobalt Cu 2759, nickel Ni 2859, copper Cu 2963, zinc Zn 3065, gallium Ga 3170, germanium Ge 3272, arsenic As 3375, selenium Se 3478. Okay, look here. Bromine, and krypton 36. Br bromine, Kr krypton. Bromine 35, 80, 36, 84. So dear students, we have already completed from hydrogen to krypton, from 1 to 36 elements, and these are most important for you. So you will certainly have to remember this, memorize this. इसके अतिरिक्त, in spite of these elements, some elements are also most important, and those are already related to Latin names. Do you know about Latin? Latin कुछ और मत समझना. Latin names का मतलब ये है कि ग्रीक वर्ड से वो लिया गया है. That element is already originated by Greek word. तो ऐसा elements कितना, how many total elements are already present in periodic table? Near about 118 elements have already discovered at this time. Right now we are already knowing. So 11 of them elements are already related to Latin names, Greek name, and they are already originated from their side. तो हम लोग वो 11 जो elements है periodic table के अंदर, जिसमें लैटिन नेम से जाना जाता है, इंग्लिश के वर्ड से रिलेटेड उसका पीरियडिक टेबल में नाम नहीं दिया हुआ है. हमेशा बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, इसलिए वैसे 11 एलिमेंट्स को ढूंढ करके बिल्कुल मैं आपको लिखाने जा रहा हूं. उसको भी लिख लें आप, ताकि आपको फिर फ्यूचर में कंफ्यूजन नहीं हो. चलिए आइए मैं बताता हूं. कौन कौन से वैसे एलिमेंट्स हैं, आइए बताता हूं मैं. फर्स्ट, सिल्वर, नाम सुना होगा आप लोग.
all Indian ladies are already under the influence of these elements. ज्वेलरी की दुकान में ज्यादातर ये मिलने आपको देखने को मिलता है और यहाँ की महिलाएं ज्यादा इससे प्रभावित होती हैं, सिल्वर एंड गोल्ड से। तो आइए सिल्वर के बारे में हम पढ़ते हैं। सिल्वर सिंबल उसका क्या होता है? एजी। आप यहाँ देखने को दिखाई दे रहा है कि सिल्वर में, सिल्वर का स्पेलिंग क्या है? SILVER, और इसमें कोई लेटर नहीं है जिसमें से निकाल कर एजी लिखा जाए। तो यही है मिस्ट्री कि ऐसे मात्र 11 एलिमेंट्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिनका इंग्लिश वाले नाम से कोई लेना देना नहीं है। इनके एक बाबूजी का नाम है, वहां से लिया गया है ग्रीक वर्ड से, लैटिन नेम से, जिसका लैटिन नेम क्या होता है, ग्रीक नेम क्या होता है, इधर मैं लिख रहा हूं इसका ग्रीक नेम क्या होता है। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, कुछ कुछ बड़ा बड़ा नाम है तो इधर से थोड़ा सा इधर इसको शिफ्ट कर देता हूं। यहाँ पर सिंबल, सिंबल ये हो जाएंगे नेम, ये हो गया सिंबल, और ये हो जाएगा लैटिन नेम। लैटिन नेम है इसका। अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं उसमें, लैटिन नेम्स है। सिल्वर को एजी से लिखते हैं और इसको लैटिन नेम में एटॉमिक नंबर इसका भी है, एटॉमिक मास इसका भी है। नाम लिख लेते हैं इसका बड़ा, इसका नाम है अर्जेंटम। अर्जेंटम, अर्जेंटम इसका लैटिन नेम क्या हो जाता है सिल्वर का? अर्जेंटम। यानी कि अर्जेंटम से ये एजी को लिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा मात्र 11 एलिमेंट्स है, उसको हमको जान लेना है, क्या प्रॉब्लम है। आइए मैं सभी 11 को दिखा देता हूं आपको। सिल्वर, इसके बाद आप लिखेंगे टीन। टीन, टीन का SN होता है सिंबल और उसका नाम एस्टैनम होता है। एस्टैनम, एस्टैनम से SN दिया गया है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में है एंटीमनी। एंटीमनी, एंटीमनी, एंटीमनी को हम लोग SB लिखते हैं सिंबल, और इसका लैटिन में नेम होता है एस्टीबियम। एस्टीबियम, वेरी गुड। 4 नंबर में हम देखते हैं। 4 में नाम है, नाम दे देते हैं गोल्ड। गोल्ड, इससे तो बहुत लोग परिचित हैं, बहुत हल्ला हंगामा होता है इसका आपको शादी ब्याह में। लड़कियों के लिए काफी और औरतों के लिए काफी ये फेमस एलिमेंट है। इसका हम सिंबल AU देते हैं और इसका लैटिन में नाम क्या है? औरम। औरम, वेरी गुड। 5 में देखते हैं। 5 में मरकरी। मरकरी, इसको हम लोग HG लिखते हैं। लैटिन में नाम इसका है हाइड्राजीरम। हाइड्राजीरम, हाइड्राजीरम, हाइड्राजीरम। चलिए 6 में देखते हैं। 6 में नाम है, ले लीजिए, लेड। लेड PB। पलम्बम, पलम्बम, पलम्बम नाम है इसका। 7 में देखिए
7 मिलान है। डायरेक्ट सिल्वर पर चले गए थे हम, सोडियम भी देख लेते हैं यहाँ पर। सोडियम इसको Na मैं लिखा चुका हूँ, ये अंडर 36 एलिमेंट्स है, इसलिए मैं छोड़ करके चल रहा था। लेकिन आपको काउंटिंग भी तो कराना है कि 11 है कि नहीं, तो 11 काउंटिंग कराने के लिए फिर से लिखना पड़ा। सोडियम Na, उसका लैटिन नेम है नाइट्रियम। चलिए पोटेशियम फिर लिखते हैं इसका लैटिन नेम कैलियम। 9 आयरन Fe, फेरम। और कमाल की बात यह है कि सभी के नाम में लास्ट में अम जुड़ा हुआ है। I mean all are metal, you know very well about। इसके सफिक्स के रूप में अगर um जुड़ा हुआ रहे तो um वाले अम वाले नाम को हम लोग डायरेक्ट मेटल बोलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये भी देखेंगे कि जितने भी लैटिन नेम्स वाले हैं सभी के सभी मेटल दिख रहे हैं। एक है जो नहीं मेटल दिखेगा, देखिए गौर से देखिए। 9 का पहले हम लोग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास देख लेते हैं। अर्जेंटम 47, 108, स्टैनम 50, 119, स्टीबियम 51, 121, औरम 79, 79 औरम 80, 200 near about and 206 near about। प्लम्बम lead, प्लम्बम नाइट्रियम, सोडियम 11, 23, कैलियम पोटेशियम 19, 39, फेरम 26, 56। प्लम्बम है उसका देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम, 2 और बच गया, 9। एक है कॉपर, सिंबल Cu, लैटिन नेम क्यूप्रम। इसमें भी अम है। 29, 63। और एक है टंगस्टन, W, वोल्फ्राम, इसमें um नहीं है। 74, 184। So you can note down। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक
नेक्स्ट टॉपिक, या 5, 6, 7 हो गया, 5, 6, 7 हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द अरेंजमेंट electronic, what do you mean by electronic configuration?